سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وقاص آزاد طاری باب المدینہ کراچی۔ باپا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو قمیض پہنتے ہیں اس کے کولر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کولر فولڈ ہوتے ہیں، کیا اس میں بھی نماز پڑھنے میں قرات ہے؟ نہیں، بلکہ پہلے تو پینٹ کے بھی جو فولڈ ہوتے تھے نیچے سے، وہ فولڈ جو ہوتا تھا نا، اسپیشلی اس کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ فولڈ کر کے اس کو پریس کر لیتے تھے، تو اس سے بھی چونکہ شیپ تو خراب نہیں ہوتا تھا تو اس کی بھی اجازت دیتے تھے علماء۔ اب شاید یہ نہیں ہوتا، اب میرا خیال ہے ڈائریکٹ وہ سیدھا ہی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ پاپا یہ تو داڑھی والے بھی ہیں، امامے والے بھی ہیں، چادر والے ہیں، میرے آج تو دوسرے مہمان بھی آئے، تو اب ذرا ہر ایک کی پابندی نہیں ہوتی ہے اجتماع کی، تو بعض اوقات یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ یار میں خود تو جاتا نہیں ہوں، اب میں کیا کسی کو دعوت دوں، تو جو خود نہیں جاتا ہو وہ کیا کرے؟ دعوت دینے سے اپنے آپ کو ذہن کیسے بنائے، کس طرح سے بنے، یا اگر ہم نہیں آتے ہیں تو ہم پابند ہو جائیں؟ دعوت دینے میں تو حرج نہیں ہے، جو نہ جاتا ہو وہ اگر دعوت دیتا ہے تو یہ بھی کار ثواب تو ہے، اور آنا چاہیے۔ خود اگر نہیں آئے گا اجتماع میں، دوسرے کو دعوت دے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعوت قبول نہ کرے گا، تم تو پہلے آؤ، چلو میں تمہارے ساتھ آؤں گا، تو جو آنا بھی چاہیے۔ اور یہ جو آئیں ہیں 4 جمعرات کی نیت نہیں کری ہوگی، میں نے ہاتھ تو اٹھوائے تھے لیکن اب ظاہر کس نے اٹھائے کس نے نہیں اٹھائے، دل کی نیت کے ساتھ اگر ہاتھ اٹھائے تو مدینہ مدینہ۔ باپا جس نے پہلے نیت کر لی تھی وہ دوبارہ بھی اظہار کر سکتا ہے؟ بھلے 8 کر لے اور کیا 4 کے، یا چلو اسی 4 کو رینیو کر لے، سبحان اللہ، کم از کم 4۔ یہ 4 تو مطلب ظاہر ہے کہ اللہ کرے کہ پوری عمر گزر جائے انہی کاموں میں، تو مزید 4 کی نیت یا انہی 4 کو رینیو۔ جنہوں نے دیکھو اگر نیت نہیں ہے ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے کہ جھوٹ ہوا نا، تو نیت ہے کہ ہاں 4 جمعرات مسلسل ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں گا۔ اب یہ نہیں کہتا کہ فیضان مدینہ ہی میں آئے، جو آپ کو قریب اجتماع ہفتہ وار دعوت اسلامی کا پڑھتا ہو اپنے مقام پر اس میں شرکت فرمائے۔ لبیک۔ 4 جمعرات کون کون؟ سبحان اللہ، یہ گھبرا رہے ہیں، اگر ہے نیت تو، ورنہ نہیں ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ۔ تو پھر اب نبھانا ہے 4 یار کی برکت سے انشاءاللہ 4 بیڑا پار انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آتے رہیں گے انشاءاللہ، باپا جہاں ممکن ہو دعوت اسلامی کا اجتماع ہو دعوت اسلامی کا انشاءاللہ۔ باپا نیتوں میں مدنی مذاکرے میں آنے کی بھی نیت ہوئی تھی کہ ان کی شرکت ہوگی، چلو تو اب ان کی بھی 4 اگر یہ بھی اپنے کو دے دیں مدنی مذاکرے کی، 4 مدنی مذاکرے مسلسل۔ پاپا یہ تو اندر آنے کی فیس ہی ہو جائے گی ان کی، ہمارے کتنے کافی دیر سے جو کوششیں کر رہے تھے بالآخر اندر آ گئے، ان کو پھر ان کو بھی تو فیس 11ویں کے مہینے کے 11 دے دیں، سبحان اللہ۔ مسلسل 11، سبحان اللہ۔ اور باپا باب المدینہ والے ہیں یہ سارے، نہیں یہ سارے ایک تعداد؟ جلوس میلاد کما، جلوس غوثیہ بھلے اسکرین پر ان کو دکھائیں گے اپنے،
वो क्या आप नारे लगाते हैं उसमें? इनको थोड़ा सिंपल भी दिखा दें, शायद जज्बा मिले। सुल्तान विलायत, वलियों पे हुकूमत, शहबाज खिताबत, फानूस हिदायत, सरताज शरीयत, है रब की नेमत, अल्लाह की रहमत, है बाइस बरकत, है साहिब इज्जत, है बहर सखावत, दरियाए करामत, फरमाओ हिमायत, टल जाए मुसीबत, सरतापा शराफत, है मखज़न आज़मत, ए माह विलायत, हो हम पे इनायत, कमजोर की ताकत, मजबूर की राहत, हो मेरी शफाअत, दिलवाई ये जन्नत, दो शौक इबादत, दो ज़ौक़ तिलावत, इस्यां से हो नफरत, नेकी की दो उल्फत, दो बदियों से नफरत, सरकार की उल्फत, दो अपनी मोहब्बत, बेकस की हिमायत, बेबस की है राहत, हो दूर ये फुरकत, दे दीजिए कुर्बत, दे दीजिए कुर्बत, मिस्कीन की दौलत, मोहताज की सरवत, वो आपकी हैबत, जिन्नों पे हुकूमत, दो दीद का शरबत, मैं कर लूं जियारत, दे दो ये सआदत, मैं देख लूं तुरबत, जब हो मेरी रहलत, देखूं तेरी सूरत, दो जज्बा खिदमत, दो नेकी की दावत, मरहबा या गौस पाक, मरहबा या गौस पाक, मरहबा या गौस पाक, मरहबा या गौस पाक। नारे गौसिया। इंशाल्लाह 11 दिन बापा के साथ जुलूस गौसिया में। सुभान अल्लाह। पापा मुझे आज वो जो वो हमारे निकाह नामे पे साइन का जो मैटर है, तो जो बात हो रही थी, तो मुझे शहीद मस्जिद में 1991 या 92 में हमारे दो इस्लामी का निकाह था, आपने निकाह पढ़ाना था। तो वो जो ख़ानदान के लोग आते हैं तो वो सब मौजूद थे, सब ने वो मतलब फार्म वार्म भर के लाए थे। तो आपको फार्म दिए, तो पहले वो कोई चाचा आगे बढ़े, वो दूल्हा से कहा के साइन करें, यानी अभी निकाह नहीं हुआ था और साइन कराने की तरकीब थी। तो शायद आपने ही कुछ इस तरह से तरबियत फरमाई थी कि ये साइन तो कर देंगे, अब निकाह तक ये ज़िंदा रहते या नहीं रहते। तो बड़ा वो महसूस हुआ था कि ये तो वाकई आज तक किसी की सोची नहीं, पहले से सारी साइनें और ये सब हो जाता है। एक बहुत मशहूर इलाका है हमारा बाबुल मदीना का, नाम नहीं लूँगा, उसकी बहुत बड़ी मस्जिद है, मशहूर है, और दावत इस्लामी का वहाँ काम भी उम्मीद होता होगा। तो एक इस्लामी भाई का निकाह, पहले तो निकाह पढ़ाता था ना मैं, दावत इस्लामी नहीं थी, मैं निकाह पढ़ाने गया, तो वो बड़ी मस्जिद है चूँकि, तो उसमें गालिबन और निकाह भी थे। तो अब मेरा दूल्हा था, उसको मैंने निकाह पढ़ाना था, दूसरे काजी साहब भी थे, या मस्जिद के वही इमाम खतीब थे जो मुझे याद पड़ता है, अब शायद हयात ना हो, अल्लाह बेचारों की मग़फ़िरत फरमाए। तो वही कि निकाह से पहले, निकाह भी मैंने पढ़ाया नहीं था, मुझे बोला फार्म साइन करो इसमें बतौर निकाह ख्वाह। तो मैंने कहा मैं निकाह तो पढ़ा लूँ पहले, फिर साइन करूँगा। कर दो साइन। मैं निकाह पढ़ाने से पहले कैसे कर दूँ, मैं जीऊँगा नहीं जीऊँगा। तो इस पर वो नाराज़ हुए थे कि ये क्या मतलब, इतनी जल्दी कोई यूँ मर जाएगा और फलाना। तो खैर मैंने नहीं की, लेकिन बाज़ों को मेरा ये मतलब फ़लसफ़ा समझ में आया कि वाकई भरोसा ही नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारी तालीम के लिए कि मैं निवाला मुंह में रखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम होता कि मैं इसको उतार पाऊँगा या नहीं। सांस अंदर लेता हूँ, बाहर निकाल पाऊँगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। इस तरह की हदीसें हैं। तो हमें इस पर तालीम दी गई है कि मौत इतनी करीब है। अब देखें ना, हम ये बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे एकदम जलजला आ जाए तो गिर जाए छत, तो कुछ भी हो सकता है। खाली ये ज़रूरत है कि कोई गोली मार देगा या बम फोड़ देगा, कुछ भी हो सकता है। वैसे मतलब निकाह पढ़ाते पढ़ाते
साइन कर ली, निकाह पढ़ाने से पहले अभी न शुरुआत की, निकाह नहीं पढ़ाया, हार्ट फेल हो गया काजी का, तो हो तो सकता है, नहीं सब होता ही है ना, रोजाना कई अमवात होती हैं और कई इसमें अचानक भी होती होंगी। इसलिए मौत तो बिल्कुल यानी कि वो है ना, मौत को आया ही समझो, बिल्कुल अपने साथ लगी हुई है। हम लोग गाफिल हैं, अब आई कि अब आई, अब आई कि अब आई, और बारहा अचानक आती है। हाँ अचानक अगर अपने कहें कि बाजों के अचानक नहीं आती तो उसको अपने यूँ तस्वुर करें कि भाई फांसी की सज़ा हो गई किसी को, तब इसको अचानक नहीं आई, अब वो इसकी तारीख आएगी तब, इससे पहले भी अचानक आ सकती है। कई फांसी के मुजरिम जो हैं वो हो सकता है कि हार्ट फेल हो जाते होंगे, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना था कि जब ये फांसी के फंदे की तरफ ले आते हैं ना इसको, हाँ तो अक्सर वो फॉर्मेलिटी होती है, वो चलते चलते उसका मतलब हार्ट फेल हो चुका होता है, तो पकड़ के लाते हैं इसको, पकड़ के लाते हैं तो वो एकदम रास्ते में उसको पता होता है कि मुझे फांसी का फंदा लगेगा और बस मैं गया, तो इससे पहले ही वो चला जाता है। फिर इसकी उसी वो समझ जाते होंगे जो पकड़ के लाते हैं, उसकी लाश को ले आते तख्ते पे, फिर उसके गले में फंदा डालते हैं। और फांसी देने का तरीका शायद बहुत सौ को ना पता हो, तो वो एक तख्त पर लकड़ी के उसको खड़ा करते हैं, लकड़ी का हो या लोहे का हो जो भी हो, तख्त होता है और ये यानी बिल्कुल सपाट, तो इसको फिर कोई बिजली की सिस्टम होता होगा, उसको वो तख्त उसके पाँव से सरक जाता है, वो खींच लेते हैं उसको, तो अब वो फंदा उसके गले में होता है, तो एक झटके से वो गड़ा होता है उसमें, वो गिरता है, लेकिन रस्से की वजह से वो गिर नहीं पाता, लटक जाता है, और अगर जिंदा भी था तो ये फंदा लग जाता है, मर जाता है। ये फांसी का तरीका सुना है, कभी ज़ाहिर देखा तो नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, मदीने में शहादत मिल जाए काश, क्योंकि अब ये कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको फांसी लगी वो वाकई मुजरिम हो, बाज़ औक़ात गलत फहमियों में भी अब गवाह और सब कुछ हो जाता होगा ना, तरकीबें बन जाती होंगी, लेकिन हर एक ज़रूरी नहीं कि मुजरिम भी हो दुनिया में जो फांसियाँ लगती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बेकसूर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ बड़ी मसाजिद होती हैं जैसे कि फैज़ान मदीना, बड़ी सफ़े होती हैं, और जब वज़ू करके जब नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो नमाज को जब रुकू में पाता है तो कोशिश करता है कि मैं पीछे जो अधूरी सफ़ होती है उसमें, जबकि पूरी सफ़ मुकम्मल नहीं हुई होती आगे वाली सफ़, लेकिन वो पीछे ही रुकू में शामिल हो जाता है, और फिर जब नमाज ख़त्म होती है जब तक वो सफ़ मुकम्मल नहीं हुई होती, तो इसका ऐसा करना कैसा, यानी कि पूरी सफ़ करने पड़े, और पूरी सफ़ करने जाता है तो वो रकात उसके छूट जाएगी। सब पूरी करना वाजिब है, और कभी ऐसा है कि सफ़ छोड़ेंगे तो कसदन वाजिब तर्क हुआ ना। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान, मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है, तो आप एक दफ़ा गुजरात तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त मैं छोटा था, तो एक अर्ज़ आपसे सवाल ये पूछना है कि आप मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब से आप मिले हैं? रहमतुल्लाहि ताला। हाँ, जब यानी कि दावत इस्लामी तो नहीं बनी थी, बाबुल मदीना तशरीफ़ लाए थे हज के बाद, तो एक जगह इनका खिताब था, बयान था, हमारी बिरादरी का हॉल था, कुतियाना कम्युनिटी हॉल, तो उसमें इनका बयान था, मैं उसमें गया था, मैंने ज़ियारत की है मैंने, अब हो सकता है दस्तबोसी भी की हो तो ये याद नहीं है मुझे। बाबा अर्ज़ ये कर पूछना ये था कि मैं जब भी गुजरात जाता हूँ, कोशिश मेरी होती है मैं जब गुजरात में दाखिल होता हूँ तो शहर के अंदर ही उनका मज़ार है, तो मैं वहाँ जाके हाज़िरी देता हूँ, और जब बाबुल मदीना के लिए आने की कोशिश करता हूँ तो आते हुए वहाँ पे हाज़िरी देता हूँ मैं। तो मैं मुफ्ती साहब की बारगाह में आपकी तरफ से सलाम पेश कर देता हूँ,
تو یہ آپ کی طرف سے اسلام ہوگا؟ میں کیا کہتا ہوں میرے پیر مرشد کی جملہ طرف کیا فرماتے ہیں آپ؟ سے میں اس طرح کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں اپنے پیر و مرشد کی طرف سے اسلام پیش کرتا ہوں، پھر بعد میں اپنا میں پیش کرتا ہوں، اپنا اسلام عرض کرتا ہوں. پتہ نہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا سلام. مستقل اجازت دے دیں میں اب آپ کو نہ صرف اجازت بلکہ مدنی التجا ہے، جب بھی حاضری ہو میرا سلام بھی عرض کریں. بے صاحب مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. بریلی شریف کی آواز آئی تھی ابھی، ہے نا؟ آواز آئی تھی. کوئی بریلی شریف کے بھی ہیں سائیں بھائی؟ آپ نے فرمایا تھا جب سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو تو میرا سلام عرض کر دیا کریں. اور اسی طرح سب کو مطلب یوں کہ جب مزارات پر حاضری ہو اولیاء کرام کے یا صالحین کے، ہر صالح کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جہاں جہاں اولیاء کرام یا صالحین کی بارگاہ میں حاضری ہو میرا سلام عرض کر دیا کریں. اب میں اسی لیے میں نے لکھا نا، وہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے انوار البشارہ، اسی لیے میں نے بھی کہ میرا بھی سلام. بابا اس میں یہ احتیاط کریں گے کہ یاد رہے تو سلام کریں، یہ جملہ اس کی حاجت نہیں ہے. نہیں یا حاجت نہیں ہے، مطلب بھول گیا تو ویسے ہی میں نے کون سا ان سے عہد و پیما لیا، میں نے خالی التجا کی ہے. یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہ کہیں تب بھی ان پر کوئی جرم نہیں ہے. باپا آپ نے پورے پاکستان میں مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے، تو کیا پاکستان میں یا کسی علاقے میں کسی نبی علیہ السلام کا مزار ہے؟ میں نے پورے باب المدینہ کا بھی، باب المدینہ کا سفر تو نہیں کیا، پورے باب المدینہ کا. باب المدینہ اتنا بڑا شہر ہے، سچ بولتا ہوں میں ہر مسجد میں نہیں گیا، ہر علاقے میں بھی میرا بیان نہیں ہوا ہوگا. رہا پاکستان تو بہت سارے شہر ہیں، اس میں نہیں گیا. چلیے کہ کسی مزار کو نبی کا مزار کہہ دینے میں جب تک کوئی یعنی کہ تصدیق نہ ہو رسک ہے کہ غیر نبی کو نبی کہنا. بابا یہ مدنی چینل پر بھی چونکہ کچھ ریکارڈنگ تو اس کی ہو ہی رہی ہے، جو آپ نے مزارات صالحین و اولیاء کا بیان کیا ہے، تو آپ کی طرف سے دیگر بھی جو سنیں گے وہ بھی سلام کہہ سکیں گے؟ کہنے میں حرج تو نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ میں نے کہا وہ لکھا ہی ہے رفیق الحرمین میں کہ بارگاہ رسالت میں شیخین کریمین کے دربار میں مقی بالا سب جگہ میرا سلام عرض کیا جائے. تو سبھی اگر سلام عرض کریں تو مدینہ مدینہ. لیکن اب جس کو پتہ نہیں ہے یہ کہ میں نے یہ کہا ہے، اب وہ جا کر کہے گا کہ آپ کو الیاس نے سلام کہا ہے، تو یہ جھوٹ ہوا یا نہیں؟ بظاہر تو جھوٹ ہوا نا. اب یہ کہ یہ کہنا کہ الیاس کا سلام قبول کریں، یہ بھی تھوڑا محل غور ہے کہ سلام کیا ہی نہیں تو قبول کرنے کی درخواست کیا. میں بارگاہ رسالت میں اس طرح کوشش کرتا تھا کہ یا رسول اللہ جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجئے. میں جس نے بولا، اب اتنے بولنے والے بھی ہوتے تھے کہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا سب کا تو نام، اور اگر میں سب کا نام یاد رکھوں لسٹ بنا لوں تو وہاں مجھے یہ نام پڑھنے کون دے گا. ہاں یہ اب تو خیر جعلی مبارک کی حاضری. ہاں پاس والے، کسی شاعر کا شعر ہے، پاس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے. وہی شعر ہی شعر ہے، دور سے سلام سبھی کا ہوتا ہے. ہم بھی اگر یہاں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم کہتے ہی ہیں نا یار، اس میں راز کی کیا بات ہے؟ کھلی بات ہے یہ تو. راز تو پوشیدہ ہوتا ہے، جب راز کھل گیا تو راز نہ رہا. اس کی عادت نکال دو، اس سے وہ سفید داغ نکل سکتے ہیں، کوڑ سمجھتے ہیں. یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے ناخن کھانے کی. رسک آئی پچھے میل کچیل پیٹ میں بھی نہیں.
वो ये आदत निकालने में बहुत देर लगेगी, एक बार बोल दिया तो इससे नहीं आती। वो तो माँ बाप निगरानी करे ना, बच्चे को आदत डालने ही ना दे, या कोई कड़वी चीज़ ऐसी लगा दे जो हो बेज़रर लेकिन बदमज़ा हो, डाले तो उसका मुंह कड़वा हो जाए तो वो फिर शायद भूल जाए। बरेली शरीफ वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, अपनी ज़बान मुबारक से हमें एक शेर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले सुना दीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह, मरहबा। तो आला हज़रत की निस्बत 25 ज़्यादा मशहूर है, तो 25 माह करने की भी इजाज़त है। प्यारे बापा जान, मैं 13 माह लगातार सफ़र कर चुका हूँ। यूँ 25 का आदत पूरा कर रहे हैं हम। क्या बात है मदीने की, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बाप पेट का कुफल मदीना में निफली रोज़े रखने की तरगीब दिलाई है, जैसे 12 रबीउल शरीफ का महीने में निफली रोज़े रख लिए। अगर उसमें किसी ने गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कुछ खा लिया या किसी मेहमान के गए वो कह रहा खा लीजिए, अब वो बताना नहीं चाहता कि मैं रोज़ादार हूँ, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? क्या अगर कुछ खा लिया तो क्या कफ़ारा अदा करना पड़ेगा? तो रोज़ा तोड़ने की इजाज़त थोड़ी होगी कि उसने कह दिया न आप मेहमान के यहाँ गए या आप मेहमान हुए, जी मेहमान हुए तो बता दे कि मेरा रोज़ा है। अगर हम उसको बताएंगे कि हमारा रोज़ा, वो तो गुस्सा होगा, वो बोलेगा तुमने रोज़ा रखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, नमाज भी तो पढ़ते हैं, लोग बोलते होंगे कि आप नमाजी हैं। तब जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो हाजिर इज़हार करेंगे ना। हज के लिए जाएंगे तो मैदान अरफात में पूरा अरफात खाली करवाएंगे क्या? मैं अकेला हज करूँगा, कोई मुझे देख ना ले। तवाफ़ कैसे करेंगे? तवाफ़ में भी हर वक्त भीड़ होती है। तो अपनी ख्वाहिश से इज़्ज़त पाने के लिए या माल पाने के लिए इबादत का इजहार ना करें कि ये रिया है। वैसे अगर ज़ाहिर हो जाती इबादत तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बात सूरतों में तो इनाम है। कफ़ारा नहीं है, नफल रोज़ा तोड़ भी दिया तो उसकी क़ज़ा है। सल्लु अलल हबीब। और फजर की नमाज में सुस्ती आती हो तो उसका इलाज क्या करना चाहिए? फजर की अभी नमाज में थोड़ी- सुस्ती आती हो तो जल्दी सो जाए। अगर जल्दी सोने के बाद भी अब जल्दी अपनी 12 बजे होती हो तो कैसे जल्दी कहलाएगी? इशा की नमाज पढ़ते ही अगर सो गया तो 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं, 2 घंटे भी शर्त नहीं है। अगर वो 2 घंटे तक मदनी काम करता है मदनी इनाम पाने के लिए और फजर जाती है तो फिर ये मदनी इनाम नहीं है ना, तो जायज़ ही नहीं है रुकना। जबकि ये कन्फर्म मालूम है कि मैं 2 घंटे जागूंगा तो फिर फजर गई मेरी, तो फिर तो आप पर लाजिम है कि आप सो जाएं, मदनी काम ना करें 2 घंटे। अब मदन मुज़ाकरात में भी अगर शिरकत ना करें, मुज़ाकरे इज्तिमा के भी बाद- तर्क करना होगा अगर इसकी वजह से फजर कज़ा होती है तो।
पापा अगर मदनी मुज़ाकरे के बाद रात वहीं रुक जाए और या हफ्तावार इज्तिमा के बाद रात वहीं रुक जाए, ये एक सूरत है कि इज्तिमा में भी रात भर वहीं पड़ा रहे तो जागने का वहाँ असबाब होते हैं, लोग जगा देते हैं एक दूसरे को इस्लाम भाई, और किसी को कह भी दे कि मुझे जगह देना, तो वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि कोई सोने ना दे गालिबन, इल्ला कोई एकदम कोने खांचे में फिजान मदीना के घुस के सो जाता हो और बच जाता हो, यूं शैतान के लिए, है ना, वो शैतान के लिए बच जाता होगा कि ये शिकार मिल गया मेरे को। बाकी तो अगर यूं मैदान में सोए फिजान मदीना के, तो मैं नहीं समझता कोई सोने से बेहोश भी ना होने दे, घसीट घसीट के नमाज पढ़ा, एक आएगा दूसरा आएगा तीसरा आएगा, आखिर उठा के छोड़ेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। सोना ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई उठा दे, छुपके सोए तो गए काम से, खतरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। सल्लु अलल हबीब। अल्लाह ताला अला मुहम्मद। पापा ये सही है कि आपका वलीमा जो है वो मदीने मुनव्वरा में भी हुआ था? यहाँ हमारे सैयदी कुतुब मदीना बाकायदे हयात थे उस वक्त, तो वहाँ जो मदीने शरीफ में हमारे दोस्त होते थे, दावत इस्लामी तो थी नहीं उस वक्त, तो उन्होंने पीर साहब के आस्थाने पर वलीमा किया था। फिर उसके उस वक्त तो वीडियो तो होता नहीं था, वो ऑडियो कैसेट भेजी थी मुझे, तो वहाँ मतलब ये रहे कि वो प्लेटों की और खनाट भी हो रही थी और नातें पड़ी गई, और शायद मतलब कुछ रियाल भी तोहफे दिए साहब भाइयों ने जमा किए मेरे लिए। अब मेरे पास वो कैसेट तो थी, अब तो खैर ज़माना हो गया, अब तो ये कैसेटों के चलाने का मेरा ख्याल है अब तो टेप भी नहीं है लोगों के, अब तो ये वीसीडी भी जा रही है, अब तो मेमोरी कार्ड है। बापा ये हमारे इस्लाम पे कुछ मेमनी मर्ज करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पापा जान डा त्रेडी का काफलो करया हुआ सा छिसत याना हुआ याना डा व्यायूं आंका मुलाकात करनी है, पहली बार आंका मुलाकात करनी कभी मुलाकात नहीं करी है। कितना आया है? के मारी अच्छा कच्ची में मन मोड़ा यो जी रबीउल अव्वल शरीफ में त्रेडी इत्काफ भी करया हुआ, मस्जिद में डोडिए इत्काफ करया हुआ। माशाअल्लाह, तो इन रबीउल अव्वल शरीफ में त्रेडी काफिला सफर करिया माशाअल्लाह। शनिवार जी इंशाअल्लाह माचा इन बाने मदनी मुजाकर अटेंड कर दिया, इंगरा यो भी बोना जो घट इन ना साथ नहीं उन्हीं के भी बैठी जो खड़ी मिली मुलाकात करो शायद इन बाने वो भी अच्छी बापा जान घर वाला चाहेंगे, बापा जान के चौंजा बख्शी जी दुआ में बख्शिश जी इंशाअल्लाह शनिवार पक्की थी इंशाअल्लाह के माड़ी बाबा ये तो लांच भरी बाबा आइन लांच में विन्ना ओडा बाबा बयान कर ले लांच भरी ने चंतो बाबा तीनों बदी रही आई तो आविया हो ना लंच में तो बाबा बरकिया वाले के ना किनारे थे अजय नहीं आविया ना बिल्कुल शेवड वा आ बाप बेते ने विन्ना बाबा बिटते बो में जगला जजीरा नोड़ा बापा आपका लॉन्च पर सफ़र कितनी मरतबा हुआ? और सफर तो एक ही यादगार था, सफीना मदीना का। अल्लाह अल्लाह। अब शुरू हो गया सफीना, सुनना शुरू हो रहा है, उसका भी एक यादगार 7 दिन शायद का सफर था, वन साइड। हाँ अच्छा हो सकता है 8 दिन का हो, बड़ा आजमाइश वाला सफर होता ही है। बापा कुछ लॉन्च का हमें कुछ बयान फरमाए बापा। बापा शहीद मस्जिद से काफिला मुझे याद है 91 92 वो चल मदीना नहीं बाबा वो जो बयान था बयान तो बापा काफिला तैयार होता था शहीद मस्जिद से और बापा सबको बिठाते थे मुझे ना मतलब उसमें रौनक होती थी, वैसे काफिले में जो नहीं आते थे ना उसमें जरूर आते थे। किश्ती में पूरी किश्तियाँ वो किश्तियाँ चलती थी, ये तकरीबन सब या रसूल अल्लाह वाले, तो ये लोग मतलब माशाल्लाह सजाते थे और ऐसा पूरी लांच होती थी और हम लोग जाते थे। बाबा आज मकतबे वाले बता रहे थे कि सफर होते थे। गोसिया झंडे जो है ना एक आता था शख्स, तो गोसिया झंडे जब भी आता 30 40 ले जाता, तो मैंने उसको अभी भी आए वो 30 40 झंडे लेके, तो भाई ये क्या लगा, तो कहा लांचों में हम गोसिया झंडे लगाते। माशाल्लाह
नहीं माशाल्लाह वो ये भिट शाह और ये जो है ना मुआने, वहाँ मस्जिद अपनी आली शान, वहाँ चोरियाँ नहीं, डकैतियाँ नहीं, चोर भागेगा कैसे? पानी है चारों तरफ, यूं अमन भी रहता था। है भी बहरे अरब तव्हां शनिवार ॾींहुं पको अचना इंशाअल्लाह, किश्ती भरीने अचना के 5-7 ॼणा जो इन कोशिश करना इन बॉय से मिली भाई बेचारा। पापा हम 4 इस्लामी भाई आए थे तो दोनों का शनाख्ती कार्ड बना हुआ था और दोनों का नहीं। जुम्मे वाले दिन आए थे तो दोनों की मुलाकात नहीं हुई और दोनों की हो गई है। और एक इस्लामी भाई का थोड़ा सा वो ज़हनी तवाज़ुन अब ठीक नहीं रहा, वो बापा करते हैं तो मुलाकात पापा। वो कहाँ है जिनका दीवानगी में बिल्कुल ही अच्छा मौजूद है वो? जी इससे पहले ठीक ठाक थे ये? जी उधर से ठीक ठाक आए थे पापा। तो ये इसी वजह से इनका ये हाल हुआ है या कोई और सबब है? पहले भी कभी हुआ ऐसा? पहले नहीं हुआ पापा, मुझे इसी तरह लग रहा है कि इधर ही आकर हुआ है। आपको लग रहा है ना, हो सकता है पहले से कोई इनको बेचारों को आरिजा हो जो यहाँ कर भी वो आरिजा खुल गया। चलो तो अगर सिर्फ इसी वजह से तो हमने मिल लेते, इसमें क्या? सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये वजह नहीं होगी शायद, और कोई नींद पूरी ना हुई हो, इसमें भी बात औकात नींद हो जाती है इनकी पूरी। पापा आगे सो जाते थे मगर इधर आकर वो दरो दीवार चूमने लगे रहे थे। कहते मैंने जो रेल गाड़ी को भी चूमा है, मैंने किस किस को नहीं चूमा, वो बताया मुझे मैंने किस किस को नहीं चूमा। तो मैं उससे अगर पापा मुझे फिर क्यों नहीं मिल रहे, मैंने तो सबको इस मुझे जहाँ पर पापा नज़र आते हैं मुझे पापा मुझे क्यों नहीं मिल रहे। पापा आज जा रहे थे तो वो ट्रेन भी हमारी चली गई है, तो आज शाम 4 बजे की टिकट थी, वो चली गई है। तो अब हम शायद हमें सुबह की मुलाकात की ये थी कि आज मदनी मुज़ाकरा होना है, हमारी मुलाकात इंशाल्लाह होनी है। तो पापा वो ट्रेन भी चली गई है, तो फिर उधर भी पापा कर रहे थे, तो उधर टोपी सारा इमामा सब कुछ उतार दिया था और ये बात कह रहे थे कि पापा से मुलाकात करनी है और मेरी वजह से दावत इस्लामी को ना कुछ हो, बस पापा बस मेरा मुर्शिद पिया। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। कल मैं सुनता रहा इनकी बातें, तो इन्होंने खाना भी शायद नहीं खाया 4-5 दिन से। क्या नाम है आपका? मिलाद रजा। खाना खाएंगे? अब तो खा लेंगे ना इंशाअल्लाह। चलो भाई इनको खाना कौन खिलाए? तरकीब करिए। हाँ बेटे खाना खा लो और फिर आराम कर लो, फजर पड़ गए और लंबा ही आराम कर लो, जोर तक आराम मिलेगा तो उम्मीद है कि तरकीब बन जाएगी। अब खाली पेट में ये डालना नहीं चाहिए। अगर ये खाया नहीं, इनको फिलहाल लिक्विड दिया जाए। ये चंद रोज से जिसने ना खाया हो ना, उसको जैसे जूस इस तरह का लिक्विड देकर, ताकि उसकी आंतें थोड़ी फ्री हों। जब आंतें फ्री होंगी तो फिर सॉलिड गिज़ा दीजिए और इनको ड्रिप लगानी चाहिए डॉक्टर के मशवरे से। तो इस तरह ये थोड़ा उसमें इतना वो हिम्मत आएगी कि ये सॉलिड खाना हजम कर सके। पापा दम फरमा दें। हाँ बेटा इनको यार वाकई मुझे याद आ गया, इनको जूस पिलाना चाहिए। हाँ बेचारे वो डॉक्टर साहब हो ना, तो वो कोई ड्रिप या इंजेक्शन लगा के सुला दें इसको, तो खुश्की होगी तो उतर जाएगी। मुन्ने अब मिलाद रजा ये बैठे बैठे पिएंगे ना, अब पूरा पीना किसी को पिलाना नहीं है। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल